गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारे दोनों क्लासेस को आपने देखा होगा और आपको एसएपी हाना की बेसिकली है क्या, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द ट्रेडिशनल डेटाबेस एंड द डेटाबेस विच वी आर यूजिंग टुडे। इन दोनों में क्या बेनिफिट्स था, व्हाट इज हैना टेम्परेचर लेयर, what is in-memory database, what is traditional database, all the things we will learn today, and how it is differ, what are the technology, what was the system were using in a traditional database, and what is the system, what is the change has been done in a memory database, all the things we will learn. So basically, in a traditional database, as we have seen, we have a three layers: presentation layer, application layer, and database layer. So presentation layer we have seen it was a GUI like graphical user interface. So whenever जब भी हम कोई भी डेटा कोई भी इनपुट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रेजेंटेशन लेयर में देते हैं तो वो इनपुट हमारे एप्लीकेशन लेयर में जाता है, डिस्पैचर के पास जाता है। फिर वहां से वो वर्क प्रोसेस होता है लाइक व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड, व्हाट कैलकुलेशन हैव टू बी डन, ऑल द थिंग्स calculated. After filtration, after calculation, it goes to the input output system, which is in a database system. So, in a traditional database, we were using a rotating disk and drum system, which is known as the mechanical component. So, in a traditional database, we were using a disk and a drum component. And after getting the after completion of the things, it goes to the ABAP dispatcher where the filtration, aggregation, and calculation was going on, and the final output again it was sending back to the presentation layer. So let's see, in a filtration, aggregation, and calculation was being done in application layer because i- in a traditional database there was a huge load and a database. So traditional database is a OLTP system. OLTP basically it stands for online transaction processing, where the we are writing the where we use a good performance, but bad read performance was there because it was taking a lot of time. But what was the advantages? Three-tier advantage: free upgrade for database and for the application layer also. In case of power failure, the big advantage of the traditional database, whenever the power failure happened, at that time we don't lose any data। जैसे ही कनेक्टिविटी, जैसे ही पावर जाता था, इलेक्ट्रिसिटी सपोज कीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो उस समय में डेटा हमारा मूव नहीं होता था, डेटा खत्म नहीं होता था। बट if you are talking about the in-memory database, in memory database, the data is stored in the form of charges because we were using a capacitor and transistor। हमने देखा कि प्रीवियस ट्रेडिशनल डेटाबेस में हम क्या यूज कर रहे थे, डिस्क एंड ड्रम कंपोनेंट, मैकेनिकल कंपोनेंट यूज कर रहे थे। बट इन मेमोरी डेटाबेस में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कैपेसिटर एंड चार ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, और हमारा जो डेटा जो हम स्टोर कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, चार्ज के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। So in memory database, data extraction from the capacitor and transistor are much faster as compared with the traditional database that is mechanical component। तो हमने देखा कि जैसे ही हमारा चार्ज में स्टोर हो रहा है तो ये इजी है हमारे लिए एक्सट्रैक्ट कर पाना डेटा को। So in case of power failure, data lost because we are using a capacitor and transistor. Whenever we use power gone, the data will lost. In memory database will be
used in a sidecar scenario where it will be act as a OLAP system. In memory database, there will be online analytic processing as well as online transaction processing. So, sorry, the data will get connected from OLTP to OLAP system. Now let's see the HANA database. HANA database basically what is this? It is a combination of OLAP and OLTP. It is a single database. Now, in this database, we were using in-memory layer along with the traditional database. HANA database में हम इन मेमोरी लेयर भी यूज कर रहे हैं, साथ में ट्रेडिशनल डेटा भी यूज कर रहे हैं, और एक हमने एक फ्लैग डिस्क भी लगा रखा है जिसको हम लोग लॉग फाइल्स बोल रहे हैं। यहाँ पे समझने की चीज है कि इन मेमोरी लेयर क्या है। Whenever the user try to read or write, all the communication happen in memory layer। जो जब भी यूजर कोई डेटा कोई चीज लिखना या पढ़ना चाहता है, रीड एंड राइट करना चाहता है, तो उस केस में जो भी कम्युनिकेशन होते हैं वो सारा इन मेमोरी लेयर में होता है। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, जो भी हमने देखा है वो सारा चीज मूव हो जाता है ट्रेडिशनल डेटाबेस में, जिसको हम लोग पर्सिस्टेंट लेयर बोलते हैं। अब जब यहाँ से इन मेमोरी डेटा लेयर, इन मेमोरी लेयर से जब वो खत्म हो चुका है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा कि जो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, मेमोरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, वो क्या हो गया, कम हो गया। अब सेकेंड, इन मेमोरी डेटाबेस का प्रॉब्लम था कि जब पावर फेलर हो रहा था तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जा रहा था, खत्म हो जा रहा था। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि इन मेमोरी लेयर में हमने जो काम करना था किया, और बाकी जो भी डेटा था हमारा वो ट्रेडिशनल डेटाबेस में चला गया लॉग फाइल्स होते हुए। अब सपोज कीजिए लॉग फाइल्स में कोई डेटा है 10 मिनट्स के बाद, 10 मिनट्स के लिए यहाँ पे है फ्लैश डिस्क में, और फिर वो ट्रेडिशनल डेटाबेस में चला जाएगा, ट्रेडिशनल डेटाबेस में वो चला जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से वो लॉग फाइल्स में आया, वैसे ही लाइट चली गई, ये 10 मिनट्स तक आपके पास यहाँ रहेगा, और हर एक 10 मिनट्स में ये रिफ्रेश होता है और ट्रेडिशनल डेटाबेस में डेटा मूव कर जाता है। तो हाना डेटाबेस बेसिकली सिस्टम सेव्स द डेटा फ्रॉम इन मेमोरी टू इन ट्रेडिशनल मेमोरी आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, जो मैंने आपको भी बताया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। इन केस ऑफ पावर लॉस द डेटा कैन बी रिकवर फ्रॉम द ट्रेडिशनल डेटाबेस और लॉग फाइल्स। आफ्टर एवरी 10 मिनट्स log files get refreshed and it is ready to accept a new data। मतलब हर एक 10 मिनट्स में लॉग फाइल्स रिफ्रेश होता है, और रिफ्रेश होने के बाद वो डेटा ट्रेडिशनल डेटाबेस में चला जाता है। नेक्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड द हाना टेम्परेचर लेयर। हमने यहाँ पे दो बॉक्स बनाया, एक में हमने डेटा रखा और दूसरे में कंप्लीट एम्प्टी रखा है, खाली रखा है। अब कितना हमें खाली रखता है, हाउ मच स्पेस हैव टू बी केप्ट फ्री, इट विल बी डिसाइडेड बाय द हाना एडमिन पीपल। कितना स्पेस हमें खाली रखना है, कितना स्पेस में हमें डेटा रखना है, ऑल द थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय द हाना एडमिन पीपल। एंड ये हमारा हाना इन मेमोरी डेटाबेस। अब यहाँ पे टेम्परेचर कैसे डाउन होता है वो देखने की जरूरत है। तो हमने देखा कि ऊपर में हमारा अपर लेयर में इन मेमोरी डेटाबेस है, लोअर लेयर में परसिस्टेंट लेयर है, और यहाँ पे पुश डाउन कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। So if any data or table is not being used since last 15 to 20 days, in that case the data will boost to the persistent layer। सपोज कीजिए कि डेटा हमने 15 to 30 डेज तक यूज ही नहीं किया है, तो फिर वहां रहने से कोई बेनिफिट नहीं है, और वो डेटा जो है वो पुश नीचे की तरफ भेज दिया जाता है, विच इज अ persistent लेयर एंड विच इज अ वार्म लेयर। इन मेमोरी डेटा को हम लोग हॉट लेयर बोलते हैं, और
persistent लेयर को हम लोग warm लेयर बोलते हैं. If any user is required, such data which has been pushed down to the persistent layer in memory layer will push back that data from the persistent layer in memory layer, that is from warm layer to hot layer, makes it available to the user. हमें यहाँ पे ये यही चीज मैंने आपको समझाया है कि 15 to 30 days तक अगर हमने कोई डेटा यूज नहीं किया तो वो हॉट लेयर से वार्म लेयर में चला जाता है. दैट इज इन मेमोरी लेयर टू persistent layer. अब जब यूजर को रिक्वायर्ड है उस डेटा की, तो वो डेटा वो डेटा क्या करेगा, पुश बैक हो, वहां से कंसिडर लेंगे persistent लेयर से एंड इन मेमोरी लेयर में आएगा. तो इस तरीके से यूजर को वो डेटा अवेलेबल हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज डेल्टा मेन स्टोरेज. व्हाट इज अ डेल्टा और मेन स्टोरेज? तो मारा एंड VBAP टेबल इज अ मेन स्टोरेज. मारा टेबल, in Mara table also there is delta and main storage, and VBAP table also there is a delta and main storage. So whenever user try to write a data, whenever user try to write a data, the data goes to the delta directly, but later on some data will move in a main table in a compressed form. जैसे मान लीजिए कि कोई मारा टेबल है, हमने उसमें कोई डेटा दिया है, कोई डेटा, we suppose we have written some data, and this data goes directly to the delta directly, but after some time that data will move in the main table in a compressed form. Whenever new user try to read the data from the system, the system will fetch the data from the delta table also and from the main table also, and then provide the desired result. मतलब कि कोई यूजर किसी डेटा की रिक्वायरमेंट है, यूजर को किसी डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो वो रीड करना चाह रहा है किसी डेटा को, रिक्वायरमेंट है उसको, तो वो पहले फेच करेगा डेटा डेल्टा टेबल से और फिर मेन टेबल से भी फेच करेगा. और आफ्टर फेचिंग द यूजर विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. सो थैंक यू वेरी मच. तो यहाँ से हम लोग ने देखा कि डेटाबेस क्या है, इसफोहाना डेटाबेस है क्या बेसिकली, और आपको अगर इन चीज़ों के बारे में डिटेल चाहिए और डिटेल चाहिए तो आप हमारे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. यू कैन सेंड मी अ मेल, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट the updated things. And in the next class, we will tell you the types of SAP project. What are the different types of the project we will discuss in the next class. So thank you very much and congratulations for a step forward for learning and reach a skill. Thank you. Bye bye.